آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کاظم شاہ پتھر ہوا تھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو رخصت ہو کر کاظم شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ نصیب پھوٹ گئے ہمارے، نہ جانے کہاں منہ کالا کیا ہے۔ کاظم اسے ابھی طلاق دے۔ کاظم شاہ کی ماں اچانک سر پیٹتی ہوئی بولی۔ کاظم شاہ سرخ آنکھیں لیے غصے سے باہر نکل گیا۔ جب گھنٹوں بعد لوٹا تو کمرے میں قدم رکھتے پتھر ہو گیا۔ اس معصوم کا وجود نیلو نیل سوجا تھا، شاید حویلی کی عورتوں نے بہت مارا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی حور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش لیے اچانک اس کا بازو جکڑا کہ وہ بولا۔ حور مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر کاظم کو دیکھتے ہوئے مزید رونے لگی۔ حور میں پوچھ رہا ہوں یہ بچہ کس کا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے داڑھا تھا۔ طلاق کا نام سنتے ہی اس کی سسکیاں بھرتا وجود ساکت ہوا۔ وہ بے یقین نظروں سے کاظم کو دیکھ رہی تھی۔ بھی رینگتے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کاظم اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا، وہ بے حد مدھم آواز میں بولی۔ کاظم اس کے سامنے دوبارہ بیٹھا۔ تو پھر بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اسے دیکھنے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے بولا۔ میں نہیں جانتی کاظم، کیا بکواس ہے یہ حور؟ وہ چیخا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی کاظم، میں خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بچا پائی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے کاظم شاہ خاموش ہوا۔ ادھر دیکھو حور، اور سچ بتاؤ، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو قبول کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس اس دن ایک غلطی کی تھی، کمرے کا دروازہ لاک نہ کرنے کی غلطی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اپنے اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی یہ سب کس نے کیا ہے۔ کاظم کو اب بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ حور نے روتے ہوئے سر اسباحت میں ہلایا۔ حور بی بی، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میری حویلی میں کوئی باہر سے آیا اور تمہارے ساتھ زبردستی کرتے چلا بھی گیا اور کسی کو کانوں کار خبر بھی نہیں؟ کاظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ میری حویلی اس علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں اس حویلی میں رہتے کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ وہ اسے گھورتے بولا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے باپ قسم اٹھاتے کہہ رہی ہوں کہ میں نے سب کچھ سچ کہا۔ وہ کاظم کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ حور کو اپنے بابا بہت عزیز تھے، وہ ان کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ حور، علی شاہ، اس حویلی میں بس 5 مرد ہیں، دادا جی، میرے بابا، چچا جان، میں اور ریحان۔ اب بتاؤ کہ ان میں سے کون تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، میں یا ریحان؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کسی بڑے نے ایسا کیا ہے؟ اس کی بات سنتے حور نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کون کر سکتا ہے ایسا تمہارے ساتھ، وہ بھی حویلی میں؟ اگر میں نے کیا ہوتا تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ تو پھر پیچھے بچا ریحان، وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، وہ ایسا کرے گا؟ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ کاظم زمین بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھا، 1 گھنٹہ فولڈ کرتے اس پر بازو رکھا۔ کب ہوا تھا تمہارے ساتھ یہ سب؟ پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو، مطلب کہ اگست کی 7 کو۔ ٹھیک ہے، میں تلاش شروع کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو 7 اگست کو حویلی میں آیا تو سزا کی حقدار تم ٹھہرو گی۔ وہ زمین سے اٹھتے بولا۔ اور اگر وہ حویلی میں ہی ہوا تو؟ حور مدھم آواز میں بولی۔ کاظم 2 قدم ہی چلا تھا کہ اس کی آواز سنتے رک گیا۔ کوئی ملازم؟ وہ کاظم کو دیکھنے پر بولی۔ کسی ملازم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی کی عورت کے بارے میں ایسا سوچے۔ وہ بول کر واش روم بند ہو گیا۔ حور دوبارہ رونے لگی۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ یہ شاہ حویلی تھی۔ دا جی اس علاقے کے سربراہ تھے، سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا انور شاہ، جن کا ایک بیٹا تھا کاظم شاہ، دوسری بیٹی تھی جن کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمید شاہ سے ہوئی تھی، جس کو کافی عرصہ پہلے اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ریحان شاہ، جو کچھ عرصے پہلے ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ ریحان اپنے باپ کی بجائے اپنے نانا کے پاس رہا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا علی شاہ، جن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حور علی شاہ جس کی عمر 20 سال تھی، اس سے چھوٹی نور علی شاہ جو 17 سال کی تھی۔ علی شاہ اور ان کی بیگم کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔
दोनों बहनों के कमरे एक साथ थे। जिस रात हूर के साथ ये सब हुआ, इस रात काफी तूफान आया था। इस तूफान और अंधेरे में कोई जान ही नहीं पाया कि इस हवेली की एक बेटी किसी दरिंदगी का शिकार हो चुकी है। इस हादसे के बाद वह नूर के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी इसमें, लेकिन अब वो खुद सबकी नजरों में एक गुनहगार बन चुकी थी। फजर की अजान सुनते ही हूर अपनी जगह से उठी। रात रोते ही गुजरी थी। काजम थोड़ी देर पहले मस्जिद चला गया। अपने बैग से कपड़े निकालते वो वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद वुजू करते बाहर आई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इसे लगा कि शायद फिर ताई अम्मी और पुप्पो आई हैं। वो खौफजदा होते हुए वही जम गई। हूर आपी दरवाजा खोलो, मैं हूँ नूर। बाहर से नूर की आवाज आई। हूर जल्दी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। इसे अंदर लाते इसने दोबारा दरवाजा लॉक कर दिया। हूर आपी, क्या आप सच में? इसकी आंखें भी सूजी हुई थी, जैसे वो भी रात को रोती रही हो। हूर ने सर इसबाहत में हिलाया। लेकिन कैसे? इसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। मैं नहीं जानती नूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तूफान आया था और लाइट भी चली गई थी। मैं डर कर जल्दी से बिस्तर में घुस गई। दरवाजा लॉक करने की याद ही नहीं रहा। फिर कोई मेरे कमरे में आया। इतना कहते वो दोबारा रोने लगी। नूर ने इसे गले लगाया। वो दोनों कद में एक जितनी ही थी। हूर आपी, अब क्या होगा? क्या आप संसार कर दिया जाएगा? क्योंकि हवेली में कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। वो खौफजदा लहजे में बोली। मैंने काजम को सब बताया है। इसने कहा है वो अपनी तलाश शुरू करेगा, और अगर इसे मुजरम ना मिला तो वह सजा की हकदार ठहरोगी। आपी, अगर इन्हें मुजरम ना मिला तो? फिर जो अल्लाह को मंजूर। तुमने नमाज पढ़ी? नहीं, अभी पढ़नी है। चलो जाओ, वुजू करो, फिर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जी आपी। वो बोलते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नमाज पढ़ने के बाद सब मर्द मर्दान खाने में इकट्ठे हो गए। ये वो कमरा था जहाँ जरगा वगैरह बुलाया जाता था। सरबराही कुर्सी पर दादाजी बैठे थे। इनके साथ अनवर साहब बैठे थे। इनके साथ कामरान साहब बैठे थे। कामरान अनवर के कजन थे और शुरू से हवेली में रहा करते थे। इनकी बीवी बच्चे को जन्म देते फौत हो गई थी, और बच्चा भी कुछ ही दिन पहले चल बसा। इसके बाद से उन्होंने कभी शादी नहीं की। दूसरी तरफ काजम बैठा था। काजम, हूर का क्या मामला है? दादाजी बोले। इन सब के चेहरों पर बरहमी थी। काजम ने इन्हें हूर की कही हर बात बता दी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी हवेली में कोई बाहर वाला नहीं आ सकता। वो लड़की झूठ बोल रही है। अनवर साहब बोले। बाबा, इसने अली चाचू की कसम उठाई है। लेकिन काजम, हवेली पर हर वक्त पहरा होता है, कोई कैसे अंदर आ सकता है? दादाजी बोले। दादाजी, कोई मुलाजम? काजम बोला। तुम अच्छे जानते हो कि हवेली के मुलाजम मर्द हमारे खानदानी मुलाजम हैं। इनके बाप दादा भी यही काम करते हैं। वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। दादाजी बोले। दादाजी, हमें एक दफा फिर हूर से बात करनी चाहिए। कामरान साहब बोले। क्या बात चाचू? काजम, अगर हूर ने अली की कसम उठाई है तो इसका मतलब है वो झूठ नहीं बोल रही। इसलिए हमें इससे तफसीली बात करनी होगी कि अगर इसे अपने मुजरम की कोई एक बात या कोई निशानी मालूम हो तो बताए, ताकि हम इस तक पहुंच सके। और दूसरी बात दाजी, इस मामले में कोई घर का मुलाजिम जरूर शामिल है, वरना अंदर की मदद के बगैर कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। इनकी बात में दम था। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि किसने गद्दारी की है इस हवेली के साथ। दाजी बोले। दाजी, हमें इस बात को छुपाना होगा, वरना जरगे में हूर को संसार करने का फैसला ही होगा, और हम सब ये जानते हैं। अनवर साहब बोले। बाबा, इसके साथ ज्यादती हुई है, फिर इसे संसार क्यों? काजम बोला। क्योंकि जरगे वाले हूर की कसम पर यकीन नहीं करेंगे। अगर हम इसके मुजरम को ना ढूंढ पाए, या हमें कोई ऐसी निशानी ना मिली जो मुजरम का पता दे दे, तो जरगा हूर को ही मुजरम ठहराएगा। मुजरम होने के बिना पर इसे संसार करना ही पड़ेगा। दादाजी बोले। लेकिन ये सब ठीक है दादाजी, मैं दोबारा हूर से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि इसे कुछ याद हो। हम इस मुजरम को ढूंढ लेंगे। काजम बोला। काजम जब कमरे में आया तो हूर कुरान बंद कर रही थी। वो आते इसके बराबर सोफे पर बैठा। हूर गर्दन मोड़े से देखने लगी। अगर हमें तुम्हारा मुजरम ना मिला तो तुम मुजरम ठहराई जाओगी, और फिर क्या होगा तुम जानती हो। संसार। वो जख्मी सा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, इसलिए इस रात के बारे में, अगर तुम्हें इस इंसान के बारे में कुछ भी याद है तो बताओ। कोई एक निशानी, कोई ऐसी बात जो हमें मुजरम तक ले जाए। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। काजम उन नजरें झुकाए कुरान पाक को देखती बोली। इसके बात सुनते काजम ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कोई सुराग मिले तो। वो बोलते उठ गया। अल्लाह मदद करने वाला है। वो नम आंखों से बड़बड़ाई। नजरें अब भी कुरान पर ही थी। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे सवाए रेहान के। वो अपने कमरे में ही रहता था। हवेली के दूसरे पोर्शन का सबसे आखिरी कमरा रेहान का था। वो सारा दिन वही रहता था। हूर को वहां देखते राशिदा बेगम, काजम की माँ, दोबारा गुस्से में आ गईं। काजम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसे इसे तो संसार कर देना चाहिए। ये अभी तक इस हवेली में क्या कर रही है? माँ, हूर के साथ ज्यादती हुई है। वो मुजरम नहीं है, बल्कि मुजरम कोई और है, और मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक इस मामले की खबर हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। काजम, तुम इस लड़की के बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी फूफो बोली। जी फूफो, क्यों, ये मेरे निकाह में है, लेकिन इसकी कोख में
किसी और का बच्चा है। राशिदा बेगम फंकारी, माँ मैं इस मामले की जांच कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि हूर मुजरिम है तब तक आप सब इस हवेली की बड़ी बहू की तरह रखें। और जो आप दोनों ने कल इस पर हाथ उठाया इसके लिए आप दाजी को जवाब जरूर देंगी। काजम आहर में दोनों को देखते बोला। वो दोनों हूर को घूरते बैठ गईं। इस वक्त किसी का सीढ़ियों पर पड़ता हुलिया गायब हो गया। एक दिन मजीद गुजर गया। अगले दिन न जाने कैसे पूरे इलाके में खबर फैल गई कि हवेली की बड़ी बेटी ने किसी के साथ मुंह काला किया है। जिसका डर था वही हुआ। गांव के बड़े बुजुर्ग जरगे में इकट्ठे हो गए। अभी तक मुजरिम का कोई सुराग ना मिला था। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है बुजुर्गों, इस बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। कामरान साहब बोले। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? एक बुजुर्ग बोले। क्योंकि इस बच्ची ने अपने मरे हुए बाप की कसम उठाई है। अनवर साहब बोले। दादाजी खामोश थे। काजम इनके साथ खड़ा था। वो दोनों जानते थे क्या फैसला होने वाला है, बल्कि हवेली का हर फर्द जानता था कि क्या फैसला होगा। अनवर साहब हम कसम पर यकीन नहीं रखते, वो खुद को बचाने के लिए झूठी कसम भी उठा सकती है। वही बुजुर्ग बोले। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित हो कि वो बच्ची बेगुनाह है और वो सच कह रही है? एक दूसरे बुजुर्ग बोले। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। अनवर साहब बोले। तो फिर आज ही फैसला किया जाए। वो पहले वाले बुजुर्ग बोले। आप में से कितने बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं कि बच्ची को संसार कर दिया जाए? दादाजी कड़क आवाज में बोले। चंद एक के सिवा बाकी सब ने हाथ उठाया। फैसला हो चुका था। असर के बाद इसे हवेली के बाहर खुले मैदान में संसार किया जाना तय पाया। हवेली में नूर मुसलसल हूर के साथ लगे रोई जा रही थी। नूर मेरी किस्मत में यही था। वो इसे चुप करवाने की कोशिश करते बोली। नहीं आपी, ये ज्यादती है। जरगे का यही फैसला है। गलत है ये फैसला। जिसने आपके साथ ये सब किया वो क्यों गुनाहगार नहीं है? इसे क्यों सजा नहीं दी जा रही? नूर, ये मर्दों का माशरा है। यहाँ औरत को सजा देना मर्दानगी समझा जाता है। इसलिए तो मेरे मुजरिम को ढूंढने की बजाय मुझे मुजरिम बनाया गया, ताकि इन मर्दों की शान में कोई कमी ना आए। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं अपनी किस्मत का लिखा कबूल कर चुकी हूँ। मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी आपी। वो बोलते दोबारा इसके साथ लग गईं। हूर खुद को बमुश्किल रोने से बाज रखे हुए थी। वो नूर के सर पर हाथ फेरने लगी। नूर, वो जो कोई भी है इस हवेली में ही है, शायद इस आखिरी कमरे में। ये मेरा दिल कहता है। वो बड़बड़ाई। नूर इसके बात सुनते पीछे होते इसे देखने लगी। आपी रेहान आधा पागल है पूरा नहीं। और मुझे आज सुबह इसी कमरे से कुछ मिला था। मैं काजम से बात करने के बाद दोबारा अपने कमरे में गई थी और मुझे बेड के पास से ये मिला था। इसने बोलते हाथ सामने किया। इसके हाथ पर एक स्टार था जो गालिबन स्टिकर था, जो शायद जूतों के साथ लगा होता है, और इस कमरे में रह गया था। अगर वो रेहान नहीं है तो जो कोई भी है था उस कमरे से मुंसलिक है। वो यकीनन पहले रेहान के कमरे में था, फिर मेरे कमरे में आया। अभी आप ये काजम भाई को दें। अब देर हो चुकी है नूर। अब कुछ भी हो जाए फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए तुम एहतियात करना, खास कर रेहान से। लेकिन आपी, इस वक्त दरवाजा खटका। हूर बाजी, असर का वक्त हो गया है। बाहर से एक मुलाजमा की आवाज आई। नूर दोबारा इससे चिपक गई। देखो नूर, जान सब की जानी है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पैदा हुआ और मरा ना हो। इसलिए तुम यही समझ लो कि मेरी मौत आज ही लिखी है। नहीं आपी, आपकी मौत नहीं, आपका कत्ल है। मैं ये नहीं होने दूंगी। वो बोलते उठी। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा नूर। इस हवेली में कोई तुम्हारा या मेरा यकीन नहीं करेगा। वो खड़े होते बोली। इसकी आंखें नम हो गई। जबर जवाब देता जा रहा था। काजम भाई, मेरा यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। मैंने अपने मरे बाप की कसम उठाई थी, लेकिन इसने तब भी मेरा यकीन नहीं किया था। यकीन आंखों में झलकता है नूर। इसकी आंखों में हर वक्त शक था। तो दाजी या फिर कामरान चाचू, इसके स्टिकर से तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, और दाजी भी जरगे के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस वक्त दरवाजा दोबारा खटकाया गया। और मैं हूँ काजम। बाहर से काजम की आवाज आई। अब बिजान नहीं हुई थी। इसे संसार करने के बाद नमाज पढ़ी जानी थी। हूर ने आगे बढ़ते दरवाजा खोला। काजम भाई, हूर आप ही बेकसूर है, मुजरिम कोई और है। नूर होते हुए इसके करीब आई। नूर, हमें जरगे का फैसला मानना होगा। अब हमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात मुजरिम की, तो इसका कोई सुराग नहीं मिला। सुराग? अगर मैं आपको कोई सुराग ढूंढ दूं तो क्या ये सजा रुक सकती है? नहीं, क्योंकि ये सब अब बेफायदा है नूर। हम सब जानते हैं कि जरगी के फैसला बदल नहीं करते। चलें काजम शाह, हूर मजबूत लहजे में बोली। राहदारी से गुजरते हूर की नजर सामने उठी, जहां हरी कमरे का दरवाजा इस वक्त खुला था और रेहान सार निकाले बाहर देख रहा था। हूर के देखने पर वो फौरन अंदर भाग गया। वो इंसानों से भी डरता था। वो सब मैदान में आ गए। एक तरफ दरख्त था जिसके साथ इसे बांध कर संसार किया जाना था। हवेली की औरतें एक तरफ खड़ी थी और बाकी लोग दूसरी तरफ खड़े थे। बांधने का काम काजम का था और पहला पत्थर मारने का भी। इसे बांधने के बाद वो सब लोग के साथ खड़ा हो गया। इन सब के हाथों में छोटे बड़े पत्थर थे। काजम के हाथ में एक बड़ा पत्थर था जो जरगे की तरफ से इसे दिया गया था। हूर इसकी आंखों में देख रही थी। कलमा पढ़ लो हूर, काजम बोला। इसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी। हूर ने आंखें बंद करते कलमा पढ़ा।
पहला पत्थर काज़म ने मारना था। इसे एक जगह खड़े देखकर एक आदमी आगे आया। काज़म साईं, आप पहला पत्थर मारें, फिर ही बाकी सब मारेंगे। मैं ये फ़र्ज़ आपको देता हूँ। इसने पत्थर इस आदमी को दे दिया। नहीं साईं, पहला पत्थर बाप, बाई या शौहर की तरफ से होता है। इस लड़की का बाप और बाई तो नहीं, इसलिए आपको ही पत्थर मारना होगा। वो इसे पत्थर वापस पकड़ाते बोला। हूर आंखें खोले इसे ही देख रही थी। काज़म ने गहरा सांस लेते पत्थर फेंका, जो इसके पाँव के करीब ज़मीन पर गिरा। इसके साथ ही बाकी लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। नूर चीखते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस हवेली की औरतों को पकड़ रखा था। कुछ ही पल बाद हूर का जिस्म बेजान हो गया। सबको हाथ के इशारे से रोकते काज़म आगे बढ़ा। इसके गर्दन पर हाथ रखते इसने महसूस करना चाहा, फिर नाक के पास उंगली रखते सांस चेक की, फिर कलाई पकड़ते चेक करने लगा। फिर वो पलटा। सब इसकी तरफ मुंतजिर नजरों से देख रहे थे। ये लड़की मर चुकी है। इसके बोलते ही सब शुक्र करते पलट गए। रोती तड़पती नूर जमीन पर बेजान सी गिर गई। हवेली की औरतें भी वापस पलट गई। मैदान खाली होते ही काज़म पलटा और जल्दी से हूर को खोलने लगा। संस्कार करने के बाद इसे औरत को यूं ही दफनाया जाता है और कोई इसका जनाजा भी नहीं पड़ता। खोलते ही इसने एक बार फिर गर्दन पर हाथ रखते इसके जिंदा होने की तसल्ली की और इसे उठाते गांव से बाहर चल पड़ा, जिस तरफ कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान दाखिल होते ही वो कुछ लोगों की तरफ बढ़ा। सब तैयार हैं? जी साईं, मैं हूर बेगम को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप यही रहो, वरना सबको शक हो जाएगा। ठीक है, और एहतियात से। वो इसे एक ट्रॉली में डालते बोला। कब्रिस्तान में दोबारा जनाजा बनाया जा रहा था, इसलिए किसी को शक न हुआ। हूर को ट्रॉली में डालते ले जाने वाला था। वो आदमी सर हिलाते ट्रॉली ले चला गया और काज़म खाली कब्र पर मिट्टी डालने लगा। कुछ देर बाद ट्रैक्टर चलने की आवाज़ आई। इसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में ही बाकी के सामान के साथ हूर की ट्रॉली भी थी। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद वो कब्रिस्तान से बाहर निकला। बाहर रेहान खड़ा था। रेहान 24 साल लड़का था, काज़म से 2 साल छोटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह हैरान हुआ। कौन कौन मरा? वो पागलों की तरह हाथ में रोड़ते बोला। हूर मरी है। कौन? कौन सी कब्र है? वही ताज़ी कब्र। वो एक तरफ देखते बोला। क्यों क्यों मरी? जरगे का फैसला था। वो इसके कंधे पर हाथ रखते बोला और पलट गया। कुछ दिन यूं ही गुजरे। मामा आज अपनी माँ की बजाय नूर के कमरे में आते देख डरते बोला। रेहान, दौड़ो नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। आपकी मामा की कुछ तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे खाना लाना पड़ा। क्या क्या हुआ इन्हें? वो दीवार के साथ नीचे बैठता बोला। वो डर रहा था। आप ही के साथ ये सब करने वाला रेहान नहीं हो सकता, वो दिल में बोली। नूर आराम से चलते इससे कुछ फैसले पर बैठी। आज सुबह फुप्पो को चक्कर आ रहे थे और अभी इन्हें बुखार है हो रहा है, लेकिन मैंने इन्हें दवा दे दी है। वो शाम तक ठीक हो जाएंगी, फिर शाम का खाना वही लाएंगी। अभी आप ये खाना खा लो। मुझे मुझे नहीं खाना, वो सर घुटनों में देते बोला। रेहान, फूफो परेशान होगी ना, वो पहले ही बीमार हैं और अगर आपने खाना नहीं खाओगे तो मजीद परेशान हो जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, वो सर नफी में हिलाते बोला। थोड़ा सा खा लो, वरना ताई जान मुझे डांटेंगी। मैं एक काम भी नहीं कर पाई, इसलिए प्लीज थोड़ा सा खा लो। वो इसे मनाने की कोशिश करते बोली। मैं ये खाना यहाँ रख ही रही हूँ, जल्दी से खत्म करो, फिर मैंने अब दवा देनी है आपको। वो बोलते उठ गई और कमरे में रखे बैठ गई। हफ्ते में एक आधा बार इस कमरे की सफाई हो जाती थी। कमरे के दरमियान एक बेड रखा था, एक तरफ अलमारी थी और एक काउच था बैठने को। कमरे में तकरीबन हर जगह कागज बिखरे हुए थे, इसके साथ कुछ स्टार जैसे स्टिकर्स भी गिरे हुए थे। आप खाना खाओ, तब तक मैं आपका कमरा साफ करती हूँ। वो रेहान को देखते बोली और कागज समेटने लगी। रेहान इसे कुछ पल देखता रहा, फिर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद कागज सिमटे वो बेड पर बैठ गई। रेहान, आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे नहीं खानी कड़वी दवाइयाँ। दवाई कड़वी है लेकिन जरूरी भी तो है ना। वो उठते साइड ड्रॉ चेक करते बोली। वहाँ कुछ पेपर्स रखे थे, इन्हें इग्नोर करते वो दूसरा ड्रॉ चेक करने लगी। वो भी खाली था। फिर घूमते वो दूसरी तरफ साइड पर आई और ड्रॉ चेक करने लगी। पहले ड्रॉ में इसे मेडिसिन मिल गई। वो बेड पर बैठे दवाइयां देखने लगी। रेहान खाना खाते इसे ही देख रहा था। दोपहर वाली दवाइयां निकालते इसने बाकी दवाइयां वापस ड्रॉ में रख दी। अब वो रेहान को देखते इंतजार करने लगी थी। कुछ देर बाद इसने खाने की ट्रे दूर धकेल दी। नूर एक हाथ में दवाइयां लेते दूसरे में पानी का गिलास पकड़ते रेहान के सामने बैठी। अब अच्छे बच्चों की तरह ये सब खाओ। वो हाथ आगे करते मुझे बोली। मुझे नहीं खानी, दवाई कड़वी है, लेकिन इससे आपकी तबीयत ठीक रहती है ना, इसलिए जरूरी है। कुछ पल इसे देखते रेहान के बाद रेहान ने मेडिसिन खा ली। इसे पानी का गिलास पकड़ाते वो उठ गई। आप परेशान ना हो, रात का खाना फूफो ही लाएंगी, वो बोलते चली गई। रेहान इसे जाता देखता रहा। अगले दिन फूफो की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। घर में इस वक्त अकेली नूर ही थी। वो अपने कमरे में बैठी बाल खोलने लगी थी जब इसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी। खाली गर्दन देखते वो चौंक
की, गर्दन पर हाथ मारते चेक करने लगी, लेकिन इसका लॉकेट कहीं गिर चुका था। वो अपना कमरा चेक करने गई, लेकिन लॉकेट ना मिला। वो सुबह से जहाँ-जहाँ गई थी वहाँ दोबारा देखने लगी, लेकिन लॉकेट ना मिला। फिर एक ख्याल आने पर वो रेहान के कमरे में की तरफ बढ़ी। रेहान इस वक्त करवट लिए सो रहा था। वो खामोशी से दरवाजा खोलते अंदर हुई, एहतियातन दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो खामोशी से कमरा चेक करने लगी। बेड के पास नजरें दोहराती वो बैठी और ड्रॉ खोलने लगी। इस वक्त रेहान ने करवट बदलते आंखें खोली। नूर को कमरे में देखते वो फौरन उठ बैठा। इसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। रेहान, दौड़ो नहीं, मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा, बस वही ढूंढ रही हूँ। पूरा घर देख चुकी हूँ, लेकिन मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा। वो रोहानसी होती हुई बोली। वो लॉकेट इसके लिए बहुत खास था। लॉकेट? रेहान बोला। हाँ, वो लोग गले में पहनते हैं, पता नहीं कहाँ गिर गया है। इसकी बात सुनते रेहान ने जल्दी से अपने तकिए के नीचे से एक लॉकेट निकाला। ये? वो सामने करते बोला। लॉकेट देखते इसकी सांस में सांस आई। मैं यही ढूंढ रही थी। वो बोलते घूमते इसकी तरफ आई, फिर हाथ आगे बढ़ाया। रेहान ने वो लॉकेट इसे दे दिया। कहाँ से लिया? वो लॉकेट की तरफ इशारा करते बोला। नूर बेख्तियार मुस्कुराई। किसी ने दिया है। वो लॉकेट को हाथों में किसी कीमती शय की तरह पकड़े हुए थी। किसने? किसी को बताओगे तो नहीं? वो बोली। रेहान ने सर नफी में हिलाया। एक लड़का है दूसरे गांव का, इसने मुझे कॉलेज जाते देखा था, फिर मुझे ये लॉकेट दिया और कहा जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो अपना रिश्ता भेजेगा। अगले हफ्ते मैं 18 की हो जाऊंगी, फिर मेरी इससे शादी हो जाएगी। रेहान ने सर हिलाया। मतलब 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो रिश्ता लाएगा, फिर शादी होगी। क्या क्या नाम है इसका? मुझे दिखाओगी इसे? इस नाम इसका सुल्तान है और इसकी कोई तस्वीर नहीं मेरे पास। हम कभी कभी ही मिलते हैं। मिलते भी कहाँ, बस दूर से एक दूसरे को देखते हैं। रेहान ने मुस्कुराते तालियां बजाईं। किसी को बताना मत, वरना घर में मसला हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो बोलते जाने लगी। जब वो पलटी, रेहान आपने रात को दवाई नहीं खाई थी? खाई खाई तो फिर वहां एक गोली क्यों थी? वो बेड के दूसरी जानब इशारा करते बोली। अपनी चोरी पकड़े जाने पर रेहान ने सर झुका लिया। दवाइयाँ कड़वी होती हैं, लेकिन हमारे भले के लिए होती हैं, इसलिए आइंदा के बाद फेंकना मत। बल्कि मैं फूफो को भी कहूंगी कि जब तक आप दवाई निगल ना लो वो जाया ना करें। मम्मी को मत बताना, वो मारेंगी। फिर वादा करो कि आइंदा के बाद दवाई फेंकोगे नहीं। वादा? और याद रखना, अच्छे बच्चे वादा तोड़ते नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। रेहान ने सर सबाहत में हिलाया। फिर नूर वापस अपने कमरे में आ गई। हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट रूम में हूर लेटी थी। इसके हाथ पर ड्रिप लगी थी और माथे पर पट्टी बंधी थी। इसकी तबीयत अब ठीक थी। जब इसे हॉस्पिटल लाया गया था तब इसके कंडीशनर बच्चा ज़ाया हो जाने की वजह से काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक थी। इस लम्हे में कमरे का दरवाजा खुला और काज़म अंदर दाखिल हुआ। अब कैसी तबीयत है? वो इसके पास रखी चेयर पर बैठते बोला। ठीक हूँ, वो मध्यम आवाज में बोली। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, नर्स ने पेन किलर दी थी, अब आराम है मुझे। अच्छा, कुछ खाओगी? नहीं, वो सर नफी में हिलाते हुए बोली। काज़म, आपने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। तुम्हारे साथ गलत हुआ था, फिर मैं तुम्हें क्यों सजा मिलती? इसलिए मुझे पहला पत्थर नहीं मार सके, लेकिन मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। अब मुझे बचा चुके हैं काज़म, आपका एहसान मुझ पर है। बीवी को बचाना फर्ज था मेरा। आपको कुछ पता चला मेरे मुजरिम के बारे में? मुझे किस पर शक है? रेहान पर। हूर की बात सुनते काज़म हैरान हुआ। मुझे भी रेहान पर ही शक है। जिस दिन मैं संसार किया जा था, इस दिन मुझे मेरे कमरे से एक स्टिकर मिला था। इस हादसे के बाद मैंने नूर के कमरे में शिफ्ट हो गई और कभी अपने कमरे में नहीं गई। मैं और नूर अपने कमरों की खुद सफाई करती हैं, इसलिए कोई मुलाजमा भी इस कमरे में नहीं आई थी। लेकिन अभी मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो रेहान ही है। या तो वो खुद रेहान था या फिर उस इंसान को रेहान जानता है। हूर बोली। मैं ढूंढ लूंगा इसे, तुम फिक्र ना करो। नूर कैसी है? क्या इसे मेरे जिंदा होने का इल्म है? नहीं, तुम्हारे जिंदा होने का इल्म सिर्फ मुझे और मेरे एक खास आदमी को है। नूर को भी बता दें, वरना वो यूं ही रोती रहेगी। एक दफा तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर बताऊंगा इसे। ठीक है। अगले 2 दिन सुकून से गुजरे। जब हवेली में फिर हंगामा बर्पा हो गया। पूरे इलाके को इल्म हो गया था कि नूर के साथ वाले किसी गांव के लड़के सुल्तान से चक्कर है। आज जरगा बिठाया गया था। काज़म वहां नहीं था। कुछ ही देर बाद नूर को बुलाया गया। नूर, क्या ये अफवाह सच है? किसी गांव के एक लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर है? दाजी बोले। दाजी, ये सच है, नूर पर इत्मीनान अंदाज में बोली। इसके बाद संते जरगा खामोश हो गया। नूर की बगावत की सजा के इसकी शादी मेरे पागल पोते रेहान से होगी। लेकिन दाजी, मैं घर से बागी नहीं हूँ। मेरा सुल्तान मेरा रिश्ता लाएगा तो फिर बगावत कैसी होगी? वो एहतजाजन बोली। लड़की, ये बगावत ही है, इसलिए जरगे का फैसला ही मानना जाएगा। एक बुजुर्ग बोले। गलत फैसला करते हैं आप सब। पहले मेरी बहन के मुजरिम को ढूंढने के बजाय इसे मुजरिम बना दिया गया और अब
اب مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تمہارا نکاح آج ہی دوپہر 12 بجے ریحان سے کیا جائے گا۔ داجی بولے۔ داجی میں جرگے کا فیصلہ نہیں مانوں گی، وہ مضبوط لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ سب معززین اس کی بات پر آگ بگولا ہوئے۔ سردار یہ لڑکی باغی ہو چکی ہے، اس لیے ابھی ہی نکاح کرتے ہیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میرا پوتا کاظم کسی کام سے شہر گیا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سردار کاظم سعید نے نکاح نہیں کروانا، اس لیے اگر اس کی سزا میں تاخیر کی تو یہ لڑکی اپنی حد پار کر دے گی۔ دوسرے بزرگ بولے۔ میں اپنی حدود اچھے سے جانتی ہوں، ٹھیک ہے نکاح ہوا کو بلایا جائے۔ داجی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ لیکن داجی نور چیہی، بس نور فیصلہ ہو چکا ہے، میرا نکاح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا سب کا جینا حرام کر دوں گی، اپنی بربادی اور میری بہن کے قاتل کرنے کے جرم میں آپ سب کو قیامت کے روز پکڑوں گی میں۔ اے لڑکی، تمہاری بہن کوئی شریف لڑکی کی، وہ شریف ہی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو کسی نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، لیکن آپ سب نے اس مجرم کو بچایا اور میری شریف بہن پر الزام لگاتے اسے سنگسار کر دیا۔ وہ ان کی بات کاٹتے روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے سب چپ ہو گئے۔ داجی کے اشارے پر ایک ملازمہ آگے بڑھی اور نور کو کھینچ کے جانے لگی۔ نکاح ہوا کو بلایا جائے، داجی بولے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ریحان سے ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا کمرے کا سامان جیسے صوفہ، ڈریسنگ ٹیبل ریحان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ریحان صوفے پر بیٹھے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ نور خاموشی سے روتی رہی۔ کچھ پل بعد پھپھو اس کے کمرے میں آئی۔ بدکردار بے حیا لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اپنے عیاشی کے لیے آنسو بہا رہی ہو، اسے دیکھتے زہریلے لہجے میں بولی۔ ہاں بہا رہی ہوں، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ آنسو پوچھی چیہی تھی۔ پھپھو نے آگے بڑھتے اسے تھپڑ مارنا چاہا جب نور نے کھڑے ہوتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے حور آپی جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، آپ ان پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی لیکن مجھ پر نہیں، وہ ان کا ہاتھ جھٹکتے بولی۔ ہمت تو دیکھو اس لڑکی کی، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ میری ہمت کی تو بات ہی مت کریں آپ، جائیں یہاں سے ورنہ کچھ غلط بول دوں گی۔ وہ انہیں باہر کا راستہ دکھاتے بولی۔ میرا بیٹے کا کمرہ ہے یہ، لیکن اب میرا کمرہ ہے، بہت خوشی سے اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کروایا ہے نا، دیکھیے گا ناک میں چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی نور علی شاہ نہیں، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتی ہو تم میرے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ۔ ریحان جیسے انسان کو کچھ کیوں کہوں گی، لیکن باقی حویلی کا کوئی فرد نہیں بچے گا، یاد رکھیے گا میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ لوگوں نے بھگتنا تو پڑے گا، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہو تم۔ وہ بولتے باہر چلے گی۔ نور واپس بیٹھ گئی۔ تم کیا کرو گی نور؟ ریحان اسے دیکھتے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ پتہ نہیں ریحان، لیکن انہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی، اس کے اب تک ختم ہو چکے تھے۔ وہ اب غصے سے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں اپنے کمرے میں جانا ہے تو چلی جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرا سارا سامان یہ لوگ اس کمرے میں منتقل کر چکے تھے، اور اگر میں اس کمرے سے گئی تب بھی واپس یہی آنا پڑے گا۔ تم نے سلطان کو بتایا نہیں؟ کیوں، ہماری بات نہیں ہوتی نا اس لیے، لیکن اس تک بھی یہ خبر پہنچ ہی جائے گی، پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ خبر پھیلائی کس نے۔ وہ ریحان کو دیکھتے بولی۔ میں کسی کو نہیں بتایا، سچ میں۔ وہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا، اگر تم بتاتے تو سب سے پہلے حویلی میں یہ بات پھیلتی، جبکہ پہلے علاقے والوں کو علم ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات باہر سے پھیلی ہے۔ ریحان نے سر صباحت میں ہلایا۔ اس وقت راشدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نور، آج سے حویلی کی کچن تمہارے حوالے، اس لیے اٹھو اور سب کے لیے کھانا بناؤ، یہی تمہاری سزا ہے۔ راشدہ بیگم اسے گھورتے بولی۔ تو آپ مجھ سے کام کروائیں گی؟ وہ انہیں دیکھتے طنزیہ بولی۔ ہاں تو پھر کروا کر دکھائیں، میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی تو پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا، جو کھانا ریحان کے لیے آتا ہے میں وہ کھا لیا کروں گی، اب پھپھو اپنے بیٹے کو تھوڑی مرنے دیں گی تو اسے بھی کھانا مل جایا کرے گا۔ وہ انہیں دیکھتے بولی۔ راشدہ بیگم نے مٹھیاں بھیجی۔ نور بی بی، تمہاری شادی سزا کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں، جانتی ہو، اچھے سے جانتی ہوں، خوش فہم میں تب ہوتی جب میری شادی سلطان سے ہوتی، لیکن اب مجھے کسی قسم کی کوئی خوشی فہمی نہیں ہے۔ وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو مجھ سے کام کروا کر دکھائیں۔ راشدہ بیگم اسے گھورتے کمرے سے چلی گئیں۔ مردان خان اس وقت گھر کے مرد ہی موجود تھے۔ کاظم غصے سے بڑا بیٹھا تھا۔ آپ کے میرا انتظار کیوں نہیں کیا داجی؟ اور نور نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، پھر اس کا نکاح کیوں کروایا ریحان سے؟ وہ کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے کو پسند کرتی تھی تو داجی وہ گھر سے باغی نہیں تھی بلکہ خاموشی سے انتظار کر رہی تھی، اس کار وہ عزت سے رشتہ بھیجے گا۔ کاظم، یہ جرگے کا فیصلہ ہے داجی، یہ کیسا انصاف تھا؟ نور نے کبھی اس سے بات نہیں کی، وہ کبھی اس سے ملی نہیں۔ کاظم، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب ختم کرو اس بحث کو، انور صاحب بولے۔ کاظم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ پہلے پہل نور ریحان کے ساتھ کمرے میں ہی کھانا کھاتی، پھر وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے لگی۔ حور کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے کاظم شاہ نے شہر میں ایک اپارٹمنٹ لیا تھا۔ ماڈرن طرز پر بنا یہ اپارٹمنٹ دو بندوں کے لحاظ سے کافی کھلا تھا۔ کاظم لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ حور ٹرے میں 2 پلیٹیں رکھی اس کے برابر بیٹھی۔ اس نے پاستا بنایا تھا۔ کاظم مسکرایا۔ نور کیسی ہے؟ اسے بھی جرگے کا علم ہو چکا تھا، تب سے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ٹھیک ہے، ریحان نے ابھی تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کب تک؟ وہ کبھی نہ کبھی تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ کیا آپ کو کوئی ثبوت ملا؟
हाँ मिला तो है। बेड पर से डीएनए सैंपल्स लिए थे। जिस जैसे रिपोर्ट्स आती हैं सब सच खुल जाएगा। ठीक। प्लेट इसे पकड़ाते बोली, एक दफा मुझे तुम्हारे मुजरम का कंफर्म हो जाए फिर तुम्हें वापस हवेली ले जाऊंगा, लेकिन तब तक सबसे छुपाना होगा कि तुम जिंदा हो। ठीक है, मैं बस नूर के लिए परेशान हूँ। परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलता, इसलिए दुआ करो कि वो ठीक रहे। मेरी अब हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि काजम के वो ठीक रहे, रेहान इसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। ऐसा ही होगा, तुम तसल्ली रखो, बस 1-2 दिन रिपोर्ट्स आ जाएगी। 25 दिन बाद नूर खाना ली कमरे में दाखिल हुई। कुछ दिनों से रेहान में तब्दीली आ रही थी, एक अनजानी सी तब्दीली। रेहान खाना खा लें। इसके बाद सुनते रेहान बुरी तरह चौंका। क्या बात है रेहान, हमारे निकाह को 1 माह होने वाला है, लेकिन आप अब भी मुझसे डरते हैं। रेहान कुछ न बोला, काफी कमजोर लग रहा था। नूर इसके साथ जमीन पर बैठते अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। सारा खाना खिलाने के बाद इसने पानी का पूरा गिलास इसे पिलाया। गुड बॉय, मेडिसिन से आप जल्द ठीक हो जाएंगे, वो इसके चेहरे पर हाथ रखते बोली। खाना खा लिया? हाँ जी ठीक है। पुप्पो रेहान की हालत देखते अफसरदा थी। पुप्पो, हमें इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ने फिर वही कहना है जो पहले कहता है, लेकिन अब रेहान की हालत ठीक नहीं रहती, जानती हूँ। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कल इसे डॉक्टर को दिखाती हूँ। पुप्पो, हमें अपना डॉक्टर बदलना चाहिए, क्योंकि इस डॉक्टर से इसे शिफा नहीं मिली। हो सकता है रेहान के लिए शिफा किसी दूसरे डॉक्टर के हाथ में रखी गई हो। ठीक है, मैं देखती हूँ कोई नए डॉक्टर। नूर ट्रे उठाते बाहर चली। किचन में दाखिल होते इसे काजम की कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वो कॉल पिक करते बोली, इसे कुछ दिन पहले मोबाइल काजम ने ला कर दिया था, वो हूर से बात कर लिया करे। अच्छा ठीक है। वो काजम की बात सुनते बोली, फिर अल्लाह हाफिज कहते वो पलट गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रेहान बेड पर बैठा था, इसे दरवाजा बंद करते देखा। वो फौरन उठा और नूर के गर्दन से दबोचते दरवाजे के साथ लगाया। तुमने खाने में कुछ मिलाया था ना? वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरफ बोल रहा था, ऐसे जैसे वो कभी पागल था ही नहीं। मैंने क्या मिलाना था रेहान, छोड़िए मुझे। वो बाएं हाथ से इसके हटाने की कोशिश करते बोली, मैं पागल नहीं हूँ, समझी? क्या हो गया है आपको? रेहान, पूरा गांव जानता है पागल है। मैं पागल कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। इसकी बात सुनते नूर सुर्ख चेहरे के साथ हंसी और दाएं हाथ को दुपट्टे से निकालते इंजेक्शन इसकी गर्दन पर लगाते बोली, मैं भी शुरू से जानती थी कि आप पागल नहीं है, क्योंकि कोई पागल किसी लड़की का रेप नहीं कर सकता। इंजेक्शन लगाते ही रेहान बेसुध होते पीछे जा गिरा। नूर इसके पास बैठी, मैं शुरू से जानती थी कि आप ही के साथ वो सब करने वाला आप हैं। जिस दिन आप ही का निकाह हुआ था, मुझे इस दिन इल्म हो गया था कि आप ही का मुजरिम कौन है। और एक मजे की बात बताऊं कि सुल्तान नामी कोई लड़का था ही नहीं शुरू से। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने ये बात की, तुम ये बात इलाके में फैला दो। और मैंने ही दाजी को कहा था कि जरगी का फैसला हमारा निकाह होगा, और देखो वैसा ही हुआ। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे खाने में कुछ मिला रही थी, और देखो आज इसका रिजल्ट भी मिला। लेकिन इस सब से तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं पागल हूँ। अभी अभी कुछ देर में पुलिस आएगी और आकर तुम्हें गिरफ्तार करेगी। तुम्हारा मेडिकल होगा, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगी। फिर तुम्हें एक लड़की का रेप और 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद हो जाएगी। रेहान की आंखें फैली। इसका जिस्म सुन पड़ रहा था, लेकिन दिमाग सही काम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है, जब हमें 25 दिन पहले इल्म हुआ था कि आप ही के मुजरिम तुम हो, तो हम इतने खामोश क्यों रहे? क्योंकि हमें शक गुजरा था कि मेरे मामा और बाबा की मौत भी तिब्बी नहीं थी। आज हमें वो इंसान मिल ही गया जिसने मेरे माँ बाप को वो इंजेक्शन दिया था, जिसने तुम्हारे स्लो पॉइंट्स ला कर दिया था। इसकी बात सुनते रेहान की सांस अटकी। रेहान साहब, कत्ल वो चीज है सालों बाद ही सही मिल जरूर जाता है। नूर बोलते उठ खड़ी हुई और अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर रेहान का खुफिया लॉकर खोलते इसने कुछ पेपर्स निकाले। अरे वो रेहान साहब ड्रग डीलर भी निकले। वो पेपर्स देखते बोली। रेहान ने सर नफी में हिलाया। मत करो नूर, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, इस रिश्ते का ही हाल कर लो। शोहर होने से पहले तुम मेरे माँ बाप के कातिल और मेरी बहन के मुजरिम हो। सजा तो मिलेगी ही नहीं। रेहान शदीद सदमे में था और वो सोच भी नहीं सकता था वो एक 18 साल लड़की से धोखा खाएगा और इसे इस तरह मात होगी। कुछ ही देर बाद हवेली में पुलिस आ गई। काजम, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ? अनवर साहब बोले, क्योंकि हमारी हवेली में एक मुजरिम है। वो इन्हें जवाब देते अफसर की तरफ पलटा। सवाई दाजी के सबके चेहरों पर परेशानी थी। कौन मुजरिम? कामराम साहब बोले, अली चाचू और चची का कातल और इसके साथ हूर का मुजरिम भी। इसके बाद सुनते वो सब रह गए। काजम इन्हें लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सारी खवातीन पुलिस से देखते परेशान हो गई। आखिरी कमरे की जानिब बढ़े। कमरा खोलते इन्हें जमीन पर बंधा रेहान नजर आया। ये है रेहान, इसके खिलाफ तमाम सबूत आपको दिए जा चुके हैं। काजम बोला, और ये भी हैं कुछ सबूत। नूर वो कागजात इन्हें देखते बोली, इतने सबूत काफी थे इसे गिरफ्तार करने को। मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? पुप्पो तेजी से इनके सामने आई। आपका बेटा मुजरिम है, इसने 2 लोगों का कत्ल किया, एक लड़की के साथ ज्यादती की और इसके साथ साथ ड्रग्स भी स्मगल कर रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है।
फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो रोते हुए बोली, अम्मी मैंने ही किया था ये सब कुछ। मामू और मुमानी को मैंने ही मारा था। हूर के साथ ही गलत मैंने ही किया था। लेकिन क्यों? राशिदा बेगम हैरान से बोली, क्योंकि बाबा ने कहा था जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो बाबा ने करवाया था और मुझे कहा कि मुझे पागल होने का नाटक करना है। फिर इन्होंने ही मुझे कहा कि अली मामू को मार दूं। लेकिन वो जहर मिला दूध मुमानी ने पी लिया और मामू को पहले से ही स्लो पॉइजन दे रहा था, इसलिए इन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो सब इसके इकरार पर हैरान हुए। कुछ देर पहले नूर ने इसे सच बोलने वाला इंजेक्शन दिया था। ये एक ऐसा माया होता है जो अगर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए वह सब सच बता रहा था। पुलिस इसे ले गई थी। पीछे पुप्पो और वही रोती अपने सबका शोहर को कोसने लगी थी, जिसने अपने बेटे की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। थोड़ी देर बाद काजम हूर को लिए हवेली में दाखिल हुआ। इसे जिंदा देखते सब हैरान हुए। हूर जिंदा थी, दाजी बमुश्किल बोले। इसे जिंदा देखते ही इसके सीने पर पड़ा बोझ हट गया था। दाजी, इस रोज मैंने झूठ बोला था कि हूर मर गई थी, जबकि हकीकत में वो जिंदा थी, काजम बोला। नूर अपनी बहन से चिपके खड़ी थी, साथ साथ रो भी रही थी। दाजी, हमें औरतों को संसार करने वाली सजा खत्म कर देनी चाहिए और इसके बजाय हमें मर्दों को संसार करना चाहिए, ताकि कोई भी मर्द किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। हमारे माशरे में सारी सजाएं औरतों के लिए हैं और जहाँ मर्द की बात आती है वहाँ इस घर वाले इसे बचाने मैदान में पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है हमें संसार मर्द को करना चाहिए, औरत को एक मकान में बंद कर देना बेहतर होगा। काज़म की बात सुनते वो खामोश हो गए। अच्छा ख्याल है। अब कुछ दिनों बाद तुम्हें तुम्हें सरदार बनाया जाएगा, फिर तुम खुद फैसला करना। नहीं दादी, सरदार बनने का हक बाबा और चाचू का है। आप ये रुतबा इन्हें दें, आपके बाद यही हमारी हवेली के बड़े हैं। काज़म की बात सुनते वो मुस्कुराए। काज़म इनका समझदार और दूसरों का एहसास करने वाला था। फिर आगे बढ़े और हूर के साथ वह हाथ रखा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने गलत फैसला किया। मैंने आपको माफ़ किया दादी। मैं जानती हूँ कि मुझे पत्थर मारने वाले बाहर के लोग थे, मेरे घर के मर्द नहीं, लेकिन इन्हें इजाज़त घर के मर्दों ने ही दी थी। इसलिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। अनवर साहब बोले, मैंने सबको माफ़ कर दिया ताया अबू, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर हूर को खानदान की सबसे शरीफ और मासूम लड़की कहा जाता था तो गलत नहीं कहा जाता था। हूर बेटा, कामरान साहब बोले, चाचू आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब जरगे की वजह से मजबूर थे। हूर बोली। राशिदा बेगम आगे बढ़ी और हूर को सीने से लगाया। मैंने काजम के लिए अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। इनकी बात सुन हूर पुरसकून हुई। इसे लग रहा था शायद वो इसे तस्लीम ना करें, लेकिन वो इसे कबूल कर चुकी थी। चले, मैं हूर को इसके कमरे में ले चलता हूँ, काजम आगे आते बोला। वो दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।